ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨੋਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਰਿਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਵ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਆਰੀਅਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਗਰ ਦੇ ਇੱਕ 2 ਪੜਾਵੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਤਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ, ਇਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਮਹਾਦੇਵੀ ਯਾਨੀ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹਾਦੇਵੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਗੌਰੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ, ਫਿਰ ਯੋਧਾ, ਦੁਰਗਾ, ਅਜਿਤ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ 3 ਗੁਣ ਸਤਵ, ਰਜ ਤੇ ਤਮਸ। ਸਤਵ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੌਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰਜ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼, ਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਊਰਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਜਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਤਮਸ ਗੁਣ। ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਤਮਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰਕਤ ਬੀਜ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਖਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ, ਗੌਰੀ, ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪਾਰਵਤੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 2 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਦ્વੈਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੈਰ ਦ્વੈਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਸ਼ਾਣ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਪਸਵੀ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਲੇਪ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਵਿਘਨਹਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤਿਕੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਤਿਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਗੋਰ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਮਤਲਬ ਗੌਰੀ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧਾ ਰੂਪ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ 9 ਰੂਪ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਪੂਜਾ, ਸੰਧੀ ਪੂਜਾ, ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ, ਫਿਰ ਵਿਸਰਜਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪਰਾਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੋਤ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਸਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਗੌਰੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰੀ, ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? आज हम हिंदू देवमाला की एक बहुत ही अहम शख्सियत देवी पार्वती, उनके बारे में बात कर रहे हैं जी। उन्हें मोहब्बत, ताकत और माँ के रूप में भी पूजा जाता है। हमारे पास जो जराए हैं उनमें पुराणों की कहानियां हैं, कुछ तारीखी चीजें भी जैसे पुराने सिक्के और दूसरी तहरीरें हैं जो उनकी अहमियत बताती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ रंग है ना, उन्हें समझें। वो नरमी और मोहब्बत वाला पहलू, फिर जंगजू वाला रूप और वो कायनाती तवानाई वाली बात। बिल्कुल। और देखें, पार्वती की कहानी सिर्फ एक देवी की दास्तान नहीं है, ये असल में एक गहरे फलसफे को भी जाहिर करती है। फलसफा कैसे? मतलब उनके जो अलग अलग रूप हैं, वो वजूद के मुख्तलिफ पहलुओं को, मुख्तलिफ हालतों को दिखाते हैं। अच्छा, तो आइए शुरू से देखते हैं। उनका सफर सती से शुरू हुआ था, है ना? जी बिल्कुल। सती, जिन्होंने अपने वालिद दक्षा के यज्ञ में अपने शौहर शिव की बेइज्जती पर अपनी जान दे दी थी। हाँ, और उसके बाद तो शिव जी बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो गए थे। जी, और इससे कायनात का जो तवाजुन था वो बिगड़ गया। और ये सिर्फ कोई अलामती बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ गया था, तारकासुर नामी राक्षस की शक्ल में। ओह हाँ, तारकासुर, उसे तो वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का बेटा ही मार सकता है। बिल्कुल, और शिव जी तो थे ही नहीं इस वक्त दुनियावी मामलात में, तो ये नामुमकिन लगता था। तो इसी जरूरत के तहत पार्वती का जन्म हुआ। आप कह सकते हैं कि ये एक कायनाती जरूरत थी। पहाड़ों के राजा हिमालय की बेटी के तौर पर उनका जन्म हुआ। और फिर उन्होंने शिव जी को वापस लाने और उनसे शादी करने के लिए बहुत सख्त तपस्या की। मतलब कमाल का अज़्म था उनका। जी, बहुत कठिन तपस्या थी। और ये समझना जरूरी है कि ये तपस्या सिर्फ जाती मोहब्बत की कहानी नहीं थी। अच्छा? ये असल में कायनाती निजाम को, इस बिगड़े हुए तवाज़ुन को दोबारा ठीक करने की एक कोशिश थी। इसी रियाजत ने शिव को उनके गहरे ध्यान से बाहर निकाला। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब इनके मुख्तलिफ रूपों पर आते हैं। वो बहुत मशहूर है। एक तरफ तो गौरी है, खूबसूरती और मोहब्बत की देवी। जी। दूसरी तरफ दुर्गा, वो जबरदस्त जंगजू जिन्होंने महिषासुर जैसे बड़े राक्षस को मारा। हाँ, महिषासुर मार्दिनी। और फिर काली का रूप भी है, जो काफी खौफनाक लगता है, जिन्होंने रक्त बीज को खत्म किया था। रक्त बीज, जी, वो अजीब राक्षस जिसके खून के हर कतरे से नया राक्षस पैदा हो जाता था। हाँ, कितना मुश्किल रहा होगा उसे हराना। तो काली ने उसका खून पीकर उसे रोका। जी, अब सवाल ये पैदा होता है जो आप भी सोच रही होंगी कि ये रूप कितने अलग हैं, एक नर्म, एक जंगजू, एक खौफनाक। हाँ बिल्कुल, इनमें मुताबिकत कैसे है? ये तजाद नहीं लगता? देखिए, ये बाज़ाहिर तजाद लगता है, लेकिन हिंदू फलसफे में 3 गुण का नजरिया है, सत्व, रजस और तमस। गुण? जी, गुण। आप ऐसे समझें कि ये वजूद के 3 बुनियादी मोड्स या हालतें हैं, इनसे ये बात समझ आती है। अच्छा, बताइए। गौरी जो हैं वो सतोगुण की नुमाइंदगी करती हैं, पाकीज़गी, सुकून, तवाजुन, ठीक है? ठीक है। दुर्गा रजस गुण की, यानी जोश, अमल, हिफाजत, बुराई के खिलाफ मुतहर्रक तवानाई। और काली वो तमस गुण की नुमाइंदगी करती हैं, तब्दीली, तहलील, वो बुनियादी कुव्वत जो पुरानी चीजों को खत्म करके नई तख्लीक की राह बनाती है। ओह, तो ये तजाद नहीं है? नहीं, ये तो जिंदगी के पूरे चक्कर की तकमील है। तख्लीक, तहफ्फुज और फना, ये सब एक ही तवानाई के मुख्तलिफ इजहार हैं। वाह, यानी ये सब एक ही शक्ति के रूप है। बिल्कुल सही कहा आपने। पार्वती को शक्ति कहा जाता है, वो फाल कायनाती तवानाई। शक्ति? जी, जिसके बगैर शिव जो कि खालिस शूर हैं, वो गैर फाल हैं, यानी शो या बेजान। उनका मिलाप ही कायनात को चलाता है। ये शक्ति और शिव का तस्वर बहुत गहरा है। हाँ, और इसी की एक बेहतरीन मिसाल अर्धनारीश्वर का तस्वुर है, आधा शिव
आधा पार्वती। जी, वो मूर्ति जिसमें आधा जिस्म मर्द का और आधा औरत का होता है। बिल्कुल, ये कायनात की दो बुनियादी कुव्वतों, मर्दाना यानी पुरुष और जनाना यानी प्रकृति के अटूट संगम को दिखाता है। और इसका कोई तारीखी सबूत भी है? हैरतअंगेज तौर पर हाँ, 2वीं सदी ईस्वी का एक कुषाण सिक्का मिला है जिस पर उमा, जो पार्वती का ही एक नाम है, और वेशु यानी शिव के नाम कुंदा है। कमाल है। अच्छा, अब अगर उनके माँ के रूप की बात करें तो वो गणेश और कार्तिकेय की वालदा हैं। जी हाँ, गणेश जी की पैदाइश से जुड़ी वो कहानी तो बहुत मशहूर है, जो है ना कि कायनात का चक्कर लगाने के बजाय उन्होंने अपने वालिदैन के गिर्द चक्कर लगा लिया। हाँ, और कहा कि आप ही मेरी कायनात है। जी, देखें, इस सादा सी कहानी में कितनी हिकमत है। ये दिखाती है कि असल चीज जाहिरी भागदौड़ नहीं, बल्कि बातिनी समझ, हिकमत और अकीदत है। और ये पार्वती के माँ के किरदार को भी बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वो सिर्फ पालने वाली माँ नहीं है, बल्कि हिकमत और हिम्मत सिखाने वाली भी है। ये बात तो है। आज भी पार्वती जी की पूजा बहुत से त्योहारों में होती है ना? जी बिल्कुल। जैसे हरियाली, तीज और गंगोर। ये खास तौर पर शादीशुदा जिंदगी की खुशी के लिए होते हैं। हाँ, और अच्छे शौहर की दुआ के लिए भी। और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में नवरात्रि का त्योहार है। 9 रातें और पार्वती के 9 रूपों यानी 9 दुर्गा की पूजा होती है। बिल्कुल, और ये 9 दुर्गा की पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अकीदतमंदों को पार्वती की जिंदगी के जो अहम रूहानी मराहिल है ना, उनको समझने का एक मौका देती है। कैसे? उनके जन्म यानी शैलपत्री रूप से लेकर मुकम्मल इल्म और ताकत यानी सिद्धिदात्री रूप तक हर दिन एक नए मरहले को जाहिर करता है। अच्छा, यानी एक रूहानी सफर की तरह है। जी, और मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी तो पार्वती के मीनाक्षी रूप के लिए ही वक्फ है। हाँ, बहुत मशहूर मंदिर है। तो खुलासा अगर करें तो पार्वती सिर्फ शिवजी की बीवी या एक देवी नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत, अज़्म, ममता और कायनाती तवानाई शक्ति का एक मुजस्समा है। उनकी शख्सियत में बहुत से पहलू हैं। बिल्कुल, उनके नर्म और ताकतवर दोनों तरह के रूप जिंदगी के मुकम्मल दायरे की नुमाइंदगी करते हैं। बनना, कायम रहना और बदलना या फना होना, वो अपने आप में एक मुकम्मल इलाहियाती निजाम है। तो जाते जाते हमारे सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो अर्धनारीश्वर का तस्वुर है, जो मर्दाना और जनाना असूलों के अटूट इत्तेहाद और एक दूसरे पर इन्हिसार की बात करता है, आज के दौर में सिनफी तवाजुन और बाहमी ताल्लुकात के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर कर सकता है, इस पर गौर कीजिएगा। नमस्ते। वो संकल्प है, वो शक्ति है, वो वैरागी को गृहस्थ बनाने वाली गृहिणी है और असुरों का संहार करने वाली महाकारी भी। एक ही देवी जिसके सौम्य और रौद्र दोनों ही रूपों की पूजा होती है। आज हम बात कर रहे हैं देवी पार्वती की, जो केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। वो जो शिव को वैराग्य से गृहस्थ जीवन में ले आई, वो जो गौरी के रूप में शांत है, दुर्गा के रूप में अजेय है और काली के रूप में महाविनाशक भी। आइए उनके रहस्यों को जाने। पहाड़ों के राजा हिमवान और मैना की बेटी पार्वती, उनका नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है, पर्वत की बेटी। लेकिन उनकी कहानी उनके जन्म से बहुत पहले उनके पिछले जन्म में सती के रूप में शुरू होती है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा अपने पति शिव का अपमान सहन ना कर पाने पर उन्होंने अपनी योग अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। उनके इस त्याग ने शिव को गहरे दुख और वैराग्य में डुबो दिया। पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस ने आतंकित कर रखा था, जिसे वरदान था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है, और शिव वो तो संसार से विरक्त हो चुके थे। तब जन्म हुआ पार्वती का। उनका एकमात्र लक्ष्य था शिव को पुनः प्राप्त करना। उन्होंने अपनी सुंदरता और भक्ति से शिव का ध्यान खींचने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। जब देवताओं ने कामदेव को भेजा तो शिव ने क्रोध में उन्हें भी भस्म कर दिया। तब पार्वती ने समझा कि शिव को बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति से ही जीता जा सकता है। तब पार्वती ने वो पथ चुना जो शिव का अपना था, तप का। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो पत्तों पर जीती थीं। फिर उन्होंने वो भी त्याग दिया और अपर्णा कहलाई। उनकी साधना से उत्पन्न तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसकी ज्वाला ने कैलाश पर बैठे महादेव के आसन को भी हिलाकर रख दिया। उनकी इस अटूट इच्छा शक्ति और प्रेम के आगे शिव को झुकना ही पड़ा और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन पार्वती सिर्फ शिव की पत्नी नहीं है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसके बिना शिव भी शव के समान है। उनका अर्धनारीश्वर रूप इसी का प्रतीक है, पुरुष और प्रकृति का मिलन, चेतना और ऊर्जा का अटूट बंधन। जब भी ब्रह्मांड पर संकट आया, पार्वती ने रौद्र रूप धारण किया। जब महिषासुर के आतंक से ब्रह्मांड कांप उठा, तब सभी देवताओं के तेज से वो महाशक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। पर जब युद्ध भूमि में रक्त बीज का रक्त धरती को लाल कर रहा था, तब उसी दुर्गा के क्रोध से जन्मी महाकाली। वो समय से परे काल का भक्षण करने वाली शक्ति है, जिन्होंने रक्त बीज की एक बूंद भी धरती पर गिरने से पहले ही उसका संहार कर दिया। वो जगत जननी है, गणेश और कार्तिकेय की माँ। एक दिन स्नान के समय अपनी रक्षा के लिए उन्होंने किसी पुरुष की सहायता नहीं मांगी।
बल्कि अपने ही शरीर के उपटन से एक बालक को आकार दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक जो केवल उनका था, गणेश कहलाया, बुद्धि और हर बाधा को हरने वाला देवता। और उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। पार्वती का हर रूप एक संदेश देता है। गौरी के रूप में वो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, दुर्गा के रूप में वो साहस और कर्म का, और काली के रूप में वो बुराई के विनाश और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी महिला में कोमलता, साहस और दृढ़ संकल्प का संगम देखें तो याद रखिएगा, उसमें देवी पार्वती का ही एक अंश है। तो संक्षेप में हमने आज जाना कि कैसे देवी पार्वती, जो हिमालय की पुत्री हैं, अपने पिछले जन्म में सती थीं। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और उन्हें वैराग्य से बाहर निकाला। वो सिर्फ एक पत्नी और माँ ही नहीं, बल्कि दुर्गा और काली जैसे शक्तिशाली रूपों में ब्रह्मांड की रक्षक भी हैं। वो शक्ति का प्रतीक है, जिसके बिना शिव भी अधूरे हैं। आपको पार्वती जी का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, गौरी, दुर्गा या काली? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस दिव्य ज्ञान को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ। धन्यवाद।